morning, church. Is anyone translating? Yeah. Good morning, church. Praise the Lord. I greet you in the most matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ this morning. Especially thank God for His grace, His mercy upon all of us. That today so many people have not seen today's day, but we are so fortunate, we are so blessed that we are today here present in His house. All glory may be to His name. And this is a privilege for us. आणि किती लोकांनी हा दिवस नाही बघितला आपण देवाच्या कृपेने आपण बघितला प्रभूला धन्यवाद देऊया. And I would like to thank God Almighty for this opportunity, and especially our pastor, dear pastor, Pastor Suhas Dada, what we call him. We have been since long time we have been associated through various ministries, and even the Gideon ministry also, and also Sister Kavita and the church as such. और डॉक्टर धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हम और डॉक्टर कोरे की पहचान बहुत सालों से है और मिनिस्ट्री के लिए भी वो धन्यवाद देना चाहते हैं. And I thank to the Holy Spirit. The reason being is that I was so, I was just, just imagining that how the Holy Spirit works among us, because what God put on my heart regarding what to speak today with you and to myself also, the same thing came from Pastor. और प्रभु को डॉक्टर धन्यवाद देना चाहते हैं कि जो वचन प्रभु ने डॉक्टर को दिया आज यहाँ पे बांटने के लिए, वही वचन आज पासवान के द्वारा आया. मी त्यांना देवाला धन्यवाद देतो की जे मी बोलणार होतो तेच पास्टरनी वर्शिप मध्ये बोलले. Yes, thank you so much. Would you like to come with me to Jerusalem today? आज यरूशलेम को आप आना चाहेंगे क्या? बरोबर यरूशलेम मध्ये येऊ शकता का? Sorry, it won't be for a long time, but it will be for some time. Once again, we'll be back in Restoration Center, and this. आपण यरूशलेम मधून थोड्या वेळाने परत रेस्टोरेशन. और ये यात्रा छोटी होने वाली है, थोड़ी देर में वापस हम RNR में आ जाएंगे. And I'm sure you all will be enjoying and will be blessed through this tour to Jerusalem. आपण सर्व यरूशलेम मध्ये आनंदित होऊ. और ये यात्रा के द्वारा हम खुश हो जाएंगे. I don't know, many of you must have already been to Israel. हम में से बहुत जन इस्राएल कितीतरी लोक इस्रायलला जाऊन आले असणार. The holy land of God. प्रभु की ये पवित्र भूमि, देवाची पवित्र भूमी. And you might have liked so many locations while visiting there with the guides and the tourist people. और उस यात्रा में हम देखेंगे कि बहुत लोग हमारी सहायता करते हैं वो जगह बताने की. सहाय्य करणारे खूप लोकांबरोबर आपण त्या ठिकाणी वेगवेगळ्या जागा बघतो. This is something amazing today. This is the first time that in 2 different languages the translation is being done. I myself is a translator by God's grace, and that is amazing. Thank you so much. आश्चर्य की बात है कि 2 भाषांतर हो रहे हैं. And we'll be specially visiting the Mount of Olivet. और जैतून का जो पहाड़ है वहाँ पे आज हमारी यात्रा होने वाली है. जैतूनाच्या पर्वताकडे जाणार आहे. See, we like human beings, we like some places, and we don't like some places, right? हम जो मनुष्य प्राणी होते हैं हमको सब कुछ जगह अच्छी लगती है और कुछ नहीं. मनुष्य असताना आपल्याला काही जागा आवडतात, काही नाही. And our Lord Jesus Christ also, he was, used to like certain places in Jerusalem. और हमारे प्रभु को भी कुछ जगह यरूशलेम में अच्छी लगती थी. येशूला पण यरूशलेम मध्ये काही जागा आवडायच्या. It could be the Garden of Gethsemane or the Sea of Galilee. और वो जो गेत्सेमनी की जो बगीचा था या गलील की जो नदी थी वो उसको अच्छी लगती थी. गलीलची नदी किंवा गेत्सेमनीचं गार्डन किंवा बगीचाला त्याला आवडतं. And even this Mount Olivet, he was one of his favorite places. और जैतून का जो पहाड़ था उसकी बहुत ही चाहती जगह थी. जैतूनाचा जो पर्वत आहे त्याचं आवडती जागा होती. And as we go through today's passage, और जब हम इस अध्याय से जाएंगे आपण त्या वचनाकडे वळूया आता. Taken from, let us turn our Bibles to the Gospel according to Matthew chapter 24 we are going to go through. मत्तैच्या 24व्या अध्यायाकडे आपण वळूया. Verses 1 through 14, and then some of the other verses also from 36 through 44 also. 1 ते 14 आणि 36 ते 44.
या 1-34-36-44. मग येशू मंदिरातून बाहेर निघून चालला असता त्याचे शिष्य त्याला मंदिराच्या इमारती दाखवायजवळ आले. तेव्हा येशू त्यास म्हणाला, हे सर्व तुम्हाला दिसते ना? मी तुम्हाला खचित सांगतो, येथे किल्ल्यावर असा एकही किल्ला राहणार नाही की तो पाडला जाणार नाही. तो जैतुनाच्या डोंगरावर बसला असता शिष्य त्याच्याकडे एकांती येऊन म्हणाले, या गोष्टी केव्हा होतील आणि आपल्या येण्याचे व या युगाच्या समाप्तीचे चिन्ह काय हे आम्हाला सांगा. येशूने त्यास उत्तर दिले, तुम्हा कोणी फसवू नये म्हणून सावध असा, कारण पुष्कळ जण माझ्या नावाने येऊन मी ख्रिस्त आहे असे म्हणतील व पुष्कळास फसवतील. तुम्ही लढायांविषयी ऐका व लढायांच्या आवया ऐका. घाबरून जाऊ नये म्हणून सांभाळा, कारण असे होणे अवश्य आहे, परंतु तेवढ्यात शेवट होत नाही. कारण राष्ट्रावर राष्ट्र व राज्यावर राज्य उठेल आणि जागोजागी दुष्काळ व भूमिकंप होतील. पण या सर्व गोष्टी वेदनांचा प्रारंभ होईल. तेव्हा तुमचे हात करण्याकरिता ते तुम्हाला धरून देतील व तुम्हाला दिवे मारतील आणि माझ्या नावामुळे सर्व राष्ट्रे तुमचा द्वेष करतील. त्यावेळी पुष्कळ जण अडखळतील, एकमेकांना धरून देतील व एकमेकांचा द्वेष करतील. पुष्कळ खोटे संदेश उठतील व अनेकास फसवितील आणि अनीती वाढल्यामुळे पुष्कळांची प्रीती थंडावी. परंतु जो शेवटपर्यंत टिकून राहील तोच करेल. सर्व राष्ट्रात साक्षीसाठी म्हणून राज्याची ही सुवार्ता सर्व जगात गाजविली जाईल, तेव्हा शेवट होईल. Amen. In verses 36 through 44, please. 44. 36-44. त्या दिवसाविषयी व त्या घटनेविषयी पित्याशिवाय कोणालाच ठाऊक नाही, स्वर्गातील दिव्य दूतास नाही, पुत्रालाही नाही. नोहाच्या दिवसात होते त्याप्रमाणे मनुष्याच्या पुत्राचे येणे होईल. तेव्हा जसे जलप्रलयाच्या पूर्वीच्या दिवसात नोहा तारवात गेला, त्या दिवसापर्यंत लोक खात पीत होते, लग्न करून घेत होते, लग्न करून देत होते आणि जलप्रलय घेऊन सर्व वाहून नेईपर्यंत त्यास समजले नाही. तसेच मनुष्याच्या पुत्राचेही येणे होईल. त्यावेळेस शेतात असलेल्या दोघांपैकी एक घेतला जाईल व एक ठेवला जाईल. जात्यावर दैत बसलेल्या दोघांपैकी एक घेतली जाईल व एक ठेवली जाईल. म्हणून जागृत राहा, कारण कोणत्या दिवशी तुमचा प्रभू येईल हे तुम्हाला ठाऊक नाही. आणखी हे समजा की कोणत्या प्रहरी चोर देईल हे घर धन्याला कळले असते तर तो जागृत राहिला असता आणि त्याने आपले घर फोडून दिले नसते. म्हणून तुम्ही सिद्ध असा, कारण तुम्हाला कल्पना नाही अशा घटनेत मनुष्याचा पुत्र येईल. Thank you, sister. Let us pray. Father in heaven, we come before you, we humble ourselves. We give you all the glory and honor for this time of gathering, fellowship and meditating upon your precious living word, O Lord. This time I submit my spirit, soul, body, my mind, my words, my thoughts into your hands, O Lord. Holy Spirit of God, guide me, lead me, speak through me that we all may learn something, O Lord. Let this word be a life application to our day-to-day life, O Master Lord. Yes, Father Lord, you be exalted and you be glorified through the word, O Master Lord. The entire time further I give it into your hands. The church and myself, we fall into your hands. The entire atmosphere we give into your hands. The Satan, we just rebuke every activity of yours from here. And we ask all this in the precious name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So we have reached Jerusalem. We are now near the Mount of Olivet. The background is such that Jesus has just finished teaching in the temple. और अभी हम उस जैतून की पहाड़ की वहाँ पहुँच गए हैं और पार्श्वभूमि ऐसी है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रचार कर चुके हैं. येशूने आपला प्रचार केला आणि आपण जैतुनाकडे आहे. And now after it's over, he is now out with some couple of his disciples whom we say and call as the inner circle disciples.
और उसकी सभा समाप्त होने के बाद प्रभु यीशु मसीह अपने कुछ चेलों के साथ है आणि त्याची सभा झाल्यानंतर प्रभू येशू ख्रिस्त त्याच्या एकदम जवळच्या शिष्यांबरोबर आहे. And they are none but Peter, John, Jacob, and Andrew. और वो चेले हैं, पेत्र है, याकूब है, योहान है और आंद्रे है. पेत्र, योहान, याकोब आणि जेकब आहे असे 14 जण. It was a practice, once the multitude left, he used to be with his inner circle disciples, discussing with them, and they was maybe having meetings also. और जब उसकी प्रचार की वो सभा समाप्त होती थी और सब भीड़ जाने के बाद वो उसके करीबी चेलों के साथ कुछ वार्तालाप करते रहेंगे. आणि त्याचा प्रचार झाल्यानंतर त्याच्या कनिष्ठ लोकांबरोबर तो सभा घ्यायचा किंवा एकमेकांसाठी ते बोलायचे. And we have as humans, we have a mentality to always impress our seniors, whether we are working somewhere. We always like, and we prefer what we can say, what we can do that will impress our senior people over there. और जैसे हम मनुष्य प्राणी हैं तो हमें अच्छा लगता है कि जो हम हमसे बड़े या बुजुर्ग है या उनके स्थान में बड़े हैं तो उनको हमारा कैसा उनके ऊपर हम कुछ इम्प्रेशन पाड़ सकें. आपण एक मनुष्य असताना आपल्या वरचे जे अधिकारी असतील कसं आपण त्यांना संतुष्ट किंवा आपण कसं त्यांच्यावर प्रभाव पाडतो अशी आपली इच्छा असते. And that is what exactly the disciples are doing here, saying to the Lord Jesus Christ that, Lord, look at this temple, how magnificent it is. और उस समय वो चेले भी ऐसे ही कर रहे थे, वो मंदिर की ओर बता के उनको कह रहे थे कितना भव्य वो मंदिर है. असेच त्याचे शिष्य येशू बरोबर मग त्यांनी केलं की त्यांनी सांगितलं मंदिर कितीतरी भव्य आहे. And to their surprise, the Lord Jesus Christ doesn't reply them the way they wanted to, but instead of that, He says that whatever you are seeing here, you will not see that unless one stone will remain on this stone will be thrown. और जैसे उनकी इच्छा थी और जैसे उनको सुनना था, जो जवाब उनको सुनना था, उसके एकदम विपरीत यीशु मसीह ने कहा कि जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं वो आप नहीं देखेंगे कुछ समय बाद. शिष्यांच्या अपेक्षेपेक्षा उलट प्रभू येशूने त्यांना उत्तर दिलं आणि त्यांना सांगितलं या मंदिराला एक एक दगड खाली पडणार आहे. And Jesus, had a very unusual way to answer people, whether it be the Pharisees or the Sadducees or the teachers. He never answered them the way they expected. Many times, in fact, He used to reply rhetorically. Instead of an answer, He used to question them, and they had to search the answer in that question itself. और प्रभु का अपने चेलों या जिन लोगों ने उनको कुछ सवाल पूछते थे, तो जब लोग सवाल पूछते थे उनको एक तरीका जवाब चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह एकदम अलग सा ऐसा जवाब देते थे या उनके पूछे हुए प्रश्नों के ऊपर ही वो उनको प्रश्न पूछते थे. आणि त्याचे शिष्य किंवा सदस्य फरिसी लोक जे प्रभू येशूकडे येऊन प्रश्न विचारायचे तो त्यांना एक वेगळ्या पद्धतीने तो उत्तर द्यायचा. And then after that, the disciples are surprised, and then they come to know that what the Lord is saying is something to do with the prophecy which we see in the book of Daniel and some other place in the Old Testament. और उस मंदिर के बारे में जो प्रभु यीशु ने जवाब उस चेलों को दिया तो चेले समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह उस बात की बात कर रहे हैं जो दानियल की किताब जो पुरानी नियम में लिखी है उसके बारे में उसका वहाँ उस संदर्भ बता रहे हैं. प्रभू येशू ख्रिस्ताने जे उत्तर दिलेलं आहे ते जुन्या करारामधला संदेश का दानियल होता त्या काळ संदर्भात त्यांनी ते उत्तर दिलं. And from there they come to the Mount of Olivet, and if you look at the geographical situation over there, the temple stands exactly opposite to the Mount of Olivet. और ये बात करते करते वो जैतून की पहाड़ की वहाँ आए और हम देखते हैं कि वो जो मंदिर है उसके एक विपरीत दिशा में था. आणि हे जे पर्वत आहे त्या पर्वत आणि मंदिर समोरासमोर असं आहे. And now the disciples, in a very subtle way, want to know from the Lord, and that's why they question Him, saying, "Tell us, when will these things be, and what will be the sign of your coming and the end of the age?" और सब प्रभु यीशु मसीह की बात समझने के बाद भी चेले को ऐसे कुछ तो भी उनसे बात पूछनी थी, अंतरी बात पूछनी थी कि कब ये सब बातें होने वाली है और कब
वापस आगमन आने वाला म्हणून है। त्याच्या शिष्याने असं सांगितलं, प्रभू येशूला विचारलं की ह्या गोष्टी कधी घडणार आहे आणि कधी ह्या सर्व गोष्टी त्याची पूर्णता होणार आहे. They were very curious, and everyone, each one of us always wants to know what the future has for us, isn't it? So many people, they go and they visit and spend so much money on going to astrologers, getting to know what the future has for them. और इस बारे में और हम भी वैसे ही रहते हैं कि हमको आगे क्या होने वाले ये बातों के हमेशा हमको एक जानने की तमन्ना होती है। और इस तमन्ना के लिए कुछ लोग तो जो भविष्य बोलते हैं उनके पास भी जाते हैं। आपण पण मनुष्याच्या रीतीने आपण पण जे लोक भविष्य बघतात त्यांच्याकडे जातो आणि आपल्याला उत्सुकता असते की उद्या काय होणार, परवा काय होणार, मला नोकरी मिळणार का, मला हे मिळणार का, ते मिळणार का. Exactly, that the youngsters will have such questions, that what the career is going to, the way the career will be shaping, and what and where the jobs would be there, when they will get married, and such questions. जवानों के पास भी बहुत सारे सवाल होते हैं कि वो अपने काम कभी लगेंगे, काम के ओहदे पर कैसे बढ़ेंगे, उनकी शादी कभी होंगी, ऐसे अनेक प्रकार के सवाल उनके मन में तरुण रहते हैं। मुलं पण असेच प्रश्न त्यांना आहे सर्व की मला नोकरी मिळेल का, माझं पुढं काय होणार आहे, माझं सगळं पुढचं भविष्याबद्दल. Now remember one thing, church, that even Jesus, the Son of God, does not know when He is going to come again. और एक बात यहाँ पे स्पष्ट रीति से है कि प्रभु यीशु मसीह को भी उस आगमन के दिन के बारे में पता नहीं है। आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला पण एक गोष्ट माहित नाही की कधी तो या जगामध्ये दुसऱ्या आगमनामध्ये येणार आहे. But the Lord Jesus Christ knew the Old Testament very well. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को पुराने नियम के सारी किताब वो अच्छी तरह से जानता था। बदल प्रभु येशूला ज्ञान आहे. He knew the prophecies told by God through prophets like Daniel. और जो भविष्यवाणी डैनियल ने की प्रभु मसीह जानते थे। दानियल संदेशकाने जी भविष्यवाणी केली प्रभु येशू ख्रिस्ताला माहित आहे. So instead of replying to their question, now the Lord Jesus Christ is now cautioning them how they should be and what they should do, instead of getting to know when this is going to happen. और जो सवाल चेलों ने पूछा उनका जवाब देने के बजाय प्रभु यीशु मसीह उनको सावधान कर रहे हैं कि वो कैसे तैयार होना चाहिए उस दिन के लिए। तिथं उत्तर देण्याच्या ऐवजी प्रभु येशू ख्रिस्ताने त्यांना सांगितलं की तुम्ही आता कसं बदलायचं आहे आणि तुम्ही कसं पुढे जायचं आहे. Beloved, we all travel every day, isn't it? We travel by road, we walk, we go in buses, we travel by planes, trains. Traveling is a part of our life, and we always travel, and we are on the road every day. और हम में से हर एक जन बहुत सारी यात्रा करते हैं। हमारे दिनचर्या में हमारे हर एक रोज के दिन में भी हम बस से जाते, रिक्शा से जाते, यहाँ जाते और ऐसी यात्रा करते। आपण तर आपल्या रोजच्या जीवनामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी प्रवास करतो, बसमध्ये किंवा ट्रेनमध्ये किंवा कसंही. And on the roads, we come across so many things, isn't it? There are so many traffic signs are there. There are crossroads. There are signals over there. Some of the signs will say that this road has only one way. Some will say there is no entry. At some roads, we find signs like dead end, don't go ahead. We find U-turn signs. We find the various signal lamps over there. और हम देखते हैं कि जब हम यात्रा करते हैं तो कहीं कहीं रोड पे लिखा रहता है कि यहाँ पे मत जाना, सावधान रहना। या कभी हम चलाते गाड़ी तो बोलते हैं कि बाबा ये नो एंट्री है, यहाँ इस जगह को जाने को आपको परवानगी नहीं है। रस्त्यावर पण बघताना वेगवेगळे चिन्ह आहे की प्रवेश बंद, जाऊ शकतो एकेरी वाहन किंवा इथे यू टर्न घेऊ शकतो, असे वेगवेगळे चिन्ह आपण रस्त्यावर बघू शकतो. And many times we don't pay heed to such signs. We just go ahead. Even if we see so many times nowadays, you must be seeing, and even I see sometimes that people are so easily jumping the signals. Nobody wants to wait. Nobody has the patience. और कभी कभी हमको जो सावधानी के जो शब्द लिखे हुए रहते हैं हमको समझने के लिए वो उसका नजरअंदाज करके उसको क्रॉस करके हम जाते हैं। कभी कभी ड्राइविंग में भी देखते हैं अगर सिग्नल गिरा है तो भी हम कार आगे लेके जाते हैं। आपण ट्रॅफिकचे नियम पाळत नाही, आपण कधी कधी मोडतो आणि जातो आणि सगळ्या गोष्टी आपण त्या जीवनामध्ये आपण करत असतो. So here the Lord Jesus Christ to the disciples and today to you and me also is giving the very first warning signs to us. और आज प्रभु यीशु मसीह भी हमें और उस समय उस चेलों को भी एक
सावधानी का एक इशारा दे रहे प्रभू हैं। येशू ख्रिस्तानी त्याच्या शिष्यांना एक सावधानाचा इशारा दिला. And he's saying to us today that take heed that no one deceives you. और ऐसे कह रहे हैं कि अब सतर्क रहिए, आपको कोई फसाना तो नहीं चाहिए। म्हणत आहे की काळजी घ्या की तुम्हाला कोणीच फसवू नये. It did not happen in only those days when Jesus walked on the earth or after him when the disciples were there, but today we see that cultism is at the peak. और ये जो बातें उस समय जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे थे तभी भी थी और अभी भी हम देख रहे हैं, जैसे जो अनेक झूठे हुए संदेश और अनेक पंथ आ रहे हैं. येशू ख्रिस्त या जगात होता त्यावेळेस पण या सर्व गोष्टी चालल्या त्या. आता पण काय झालेले खोटे शिक्षण आणि कल्ट चर्चेस आलेल्या आहे. Never before, but now you will see people from various groups like the Only Jesus or the Jehovah's Witness and even the Heavenly Martha, and all those people will come and visit you at your places and try to convince you from the same word of God which we read every day. और इतनी शैतानी कार्य ज्यादा बढ़ गई है. हम देखते हैं नए ऐसे ग्रुप्स आ रहे हैं, यरूशलेम माता या यहोवा विटनेस या सिर्फ यीशु मसीह, ऐसे अनेक प्रकार के जो ग्रुप आते हैं वही बाइबल लेके उसी के वचन से हमको वो भुलाना चाहते वेगवेगळे हैं. पंथ हे निघालेले योहस 70 ॲडव्हेंटिस्ट, योहस विटनेस, मग त्याच्यानंतर वेगवेगळे पंथ आलेले आणि देवाच्या वचनातून ते लोकांना फसवते, थकवते आणि असे कल्ट चर्चेस वाढत And आहेत. the Lord says that be aware and take heed that no one will deceive you. How will this happen? If you wish that no one should deceive you, what is the need for that? What do we need to do? और इसलिए वचन में ऐसे लिखा है कि सतर्क रहिए कि आप कुछ भी भूल थाप या ऐसे फसावी हुई बातों में नहीं जाना आणि चाहिए. परमेश्वर म्हणत आहे, प्रभू येशू ख्रिस्त तुम्ही सावधान व्हा आणि या भूल तापापासून तुम्ही वाचवा की लोकांनी तुम्हाला फसवू नये आणि वाईट चुकीच्या शिक्षणाकडे जाऊ नये. And for that we need to read and meditate and study the word of God, the pure original word of God which was spoken by the God through his breath. आणि त्याच्यासाठी आपल्याला पवित्र शास्त्र हे वाचलंच पाहिजे आणि ते प्रभू येशू ख्रिस्तानी किंवा परमेश्वराने ते त्याच्या मुखातून बोललेलं आहे. Unless you, yeah, please. और ये जो इस दुनिया में हम भटकने नहीं चाहिए, इसलिए प्रभु का जो वचन है, जो आत्मा से प्रेरित प्रभु का रेमा वो शब्द है, उसमें हम रहना चाहिए. Don't be surprised at what is happening all over the world. और अब अचंभित मत होना अपने दुनिया में क्या हो रहा या है. जगामध्ये काही चाललं ते बघून तुम्ही आश्चर्य होऊ नका. Every media channel today is flashing all the news about so many things and we are getting surprised of it. What is happening in the world? So many earthquakes are happening, tsunamis are coming, what not? और जो भी हम देख रहे हैं मीडिया के द्वारे जो खबर आ रही है कि यहाँ पे सुनामी आ रही है, वहाँ पे भूकंप हुआ है, यहाँ पे जल प्रलय हुआ है, ऐसे और अनेक प्रकार की बातों से हम अपना ध्यान से हम कष्टी नहीं होना चाहिए. पूर वगैरे मीडिया किंवा न्यूज मध्ये आपण वाचतो किंवा ऐकतो, हे बघून तुम्ही घाबरू नका. You'll be surprised to know that every year almost 16 to 20 earthquakes are taking place in the world. और आपको ऐसे आश्चर्य लगेगा कि हर साल 15 से 20 बार भूकंप होते हैं. दरवर्षी 16 ते 20 वेळेस भूकंप या जगात होतात. Almost 20% of the countries of the world are into war due to some reason. और दुनिया के 20% लोग तो युद्ध में रहते हैं. 20% लोक जगातले जे देश युद्धामध्ये आहे. Already there have been famine, starvation taking place all over the world in so many nations. और कितने तो भी आकार आ गई है और भूख लोगों में बढ़ रही है. कितीतरी ठिकाणी दुष्काळ आहे आणि लोक उपाशी मरत आहेत. The Russia-Ukraine war is on for almost more than 2 years now, and now the Israel and the Hamas war, you know very well. और अभी जो लड़ाई चल रही है, पहले रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध 2 साल से भी बढ़कर हो गया है, और अभी हम जानते हैं हमास और इस्रायल में जो अनबन है उसके बारे में हम जानते हैं. युक्रेन, हमास, इस्रायल यांचं युद्ध आपण बघत आहे. इथे 2 वर्षापासून चाललं आणि इस्रायलचं आता सुरुवात झाली. Persecution is at the peak. You will be surprised to know that last year more than 6,000 Christian believers were killed for the sake of Lord's name, Jesus' name. और आपको आश्चर्य लगेगा कि जो छल है
जो प्रभु यीशु के सेवक है उन पे जो छल पड़ा है, तो पिछले साल में 6,000 से भी बढ़कर ऐसे प्रभु का दास का वध हुआ ख्रिस्ती है। लोकांच्या विरुद्ध छळ सुरू आहे, आपल्याला माहित आहे. मागच्या वर्षी 6,000 विश्वासू लोकांना मारून टाकण्यात आलं. So persecution will be there. There is nothing to surprise. It's already given here. Since the not only the New Testament, the Old Testament prophecies, everything is described word to word what will happen in the end times. और छल तो होने वाला ही है, छल तो जारी रहने वाला है। इसके बारे में हमको कोई भी आश्चर्य अचिंभा नहीं होना चाहिए कि प्रभु के वचन में पुराने नियम और नए नियम में इसके बारे में लिखा है। आणि आपल्याला हे बघ आश्चर्य नाही व्हायला पाहिजे की पवित्र शास्त्रामध्ये जुन्या आणि नवीन करारामध्ये सर्व गोष्टीचा उल्लेख आहे. I was mentioning about the different road signal signs, and one of the things I forgot to mention is the speed breakers, isn't it? There are speed breakers. And what are they meant for? They are meant to control our speed. और जैसे डॉक्टर ने बताया कि रोड सिग्नल के बारे में, लेकिन एक बात वो बोले कि जब हम रोड पर चलते हैं तो हम स्पीड ब्रेकर्स भी देखते हैं, और स्पीड ब्रेकर काहे के लिए दिया है कि जो हम गाड़ी चलाते हैं वो तेजी कैसे मेंटेन करना है उसके लिए। आणि डॉक्टरांनी आपल्याला विसरलं की गती रोगाबद्दल इथे विसरलेली स्पीड ब्रेकर बद्दल. And these speed breakers, and 2020 and 2021, these 2 years, all of us have experienced a very bad and deadly speed breaker, isn't it? और हम जानते हैं कि 2020 और 21 में स्पीड ब्रेकर के कितने तो भी भयानक ऐसे जो रिपोर्ट हम तक आई है। बद्दल 20-21 2 वर्षामध्ये कितीतरी लोक भयानक ऍक्सिडेंट झालेला आपण बघितलेला आहे. Yeah, that was not accident, Pastor, sorry, but that was the speed breaker which came in the form of the pandemic of COVID-19. आणि और हमने तो वो जो गाड़ी के इसके ऊपर हम बता रहे थे, लेकिन डॉक्टर का कहना था वो जो पैंडेमिक जो कोरोना वायरस आया उसके बारे में यहाँ बताना चाहते आणि थे। कोरोना व्हायरस बद्दल आपण बोलत आहे. Did we ever think that we won't be able to come at the church to worship the Lord, to hear His word? But it happened, and we had to come together on various virtual platforms, isn't it? और कभी भी हम सोचे भी नहीं थी, ऐसी बात हो गई कि हमें उस दौरान 2021 में हमें कलीसिया आने के लिए मार्ग नहीं थे, क्योंकि सब इधर बंद था, इसलिए हमें ऑनलाइन ज्वाइन करना पड़ता था। आणि ह्या 20-21 मध्ये आपल्याला असं वाटलं नाही की आपल्याला घरी बसून परमेश्वराच्या ह्या गोष्टी ऐकाव्या लागतील. A microvirus, not visible to human eye, only to the electron microscope, but caused such a disaster. Crores of people died in that. और वो बहुत ही जो छोटा सा जो वायरस है, जो एक मानव के आँख को नहीं दिख सकता है, ऐसे एक छोटे जीव ने ये सारी हलचल मचाई। मायक्रो व्हायरस आहे जे आपल्या डोळ्यांनी दिसू शकणार नाही, ह्यांनी काय केलं, अनेक लाखो कोटी लोकांचा जीव घेतला. All the experts of the world, the WHO, so much money spent on research, but no one could do anything about this virus, isn't it? और हम देखते हैं उस समय जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी थे और अनेक प्रकार का पैसा डालकर भी उस जंतु के लिए, उस वायरस के लिए कुछ नहीं कर सकते। WHO अशा इन्स्टिट्यूटनी पण आणि चांगले शिकलेले लोकांनी, सायंटिस्ट लोकांनी पण त्या व्हायरसच्या विरुद्ध जाऊन काही थांबवू शकले नाही. So many people got admitted, whether they be richest people, having so many degrees with them, so knowledgeable, intellect people, everything was there. The biggest, the super specialty hospitals, but no one could do anything about that. और हम जानते हैं कि बहुत अमीर, बहुत ज्ञानी लोग भी, और जिनके पास सब कुछ होते हुए भी वो खुद के लिए कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हॉस्पिटल की उपलब्धि होने से भी कुछ फायदे का नहीं था। आपण बघितलं की तिथे ज्ञानी श्रीमंत लोक ज्यांच्याकडे पैसा होते, मोठमोठे स्पेशलिस्ट हॉस्पिटलनी पण ह्या गोष्टी वाचू शकल्या नाही, पण काबूमध्ये आणू शकल्या नाही. And we believers, that particular time during the COVID pandemic, what did we do? We came together on the Zoom platforms and Google Meets, and we spent our maximum time into meditating the Word of God, praying together, isn't it? That happened. और हम जो कलीसिया है उस
समय हम देखते थे कि हम अब मीडिया द्वारा जो गूगल मीट है या कुछ ऑनलाइन सभा में आके हम दुआ में बैठ रहे थे और मध्यस्थी कर रहे थे. आपण सर्व मंडळी काय केलं, आपण ऑनलाईन द्वारे एकत्र येऊन आपण मध्यस्थीची प्रार्थना केली आणि एकमेकांसाठी सहवास केला. There was a global survey taken up, and that survey had results saying that the verse which is there on that poster over there, the 2nd Chronicle and chapter 7 and the verse 14, was never before read that many times when it was specially read during the pandemic. और जो दूसरे इतिहास के 7:14 से 16 वचन उस समय जितने बार हरेक कलीसिया में या हरेक व्यक्ति जीवन में लोगों ने पढ़ा रहेगा, उसके पहले ये वचन की ओर किसी का भी ध्यान नहीं गया. 7:14 ते 16 हे वचन आपण फक्त कोविड मध्ये भरपूर वेळाच वाचलं. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land. और मेरे लोग जो मेरे बुलाए हुए लोग अगर वो खुद को नम्र करते हैं और अपने पापों से फिरते हैं और मेरे सामने आते हैं नम्रता से, तो मैं उनकी आवाज सुनूंगा और उनको मैं क्षमा करूंगा. जर असं म्हटलेलं की माझे लोक जर नम्र झाले आणि माझ्या पाठीमागे गेले, माझ्या मुखाकडे ते शोधलं, तर त्यावेळेस मी ते त्यांच्या वाईटपणा निघून काढला, तर त्यावेळेस मी त्यांना क्षमा करील आणि मी त्यांना जवळ घेईन. And once the COVID was over, what did happen? और जब ये जो पैंडेमिक खत्म हुए तो क्या हुआ? कोविड झाल्यानंतर काय झालं? We again got back to that very routine what previously we had. तो जब ये संकट समय खत्म हुआ तो जैसे थे वैसे हम फिर से बन आपलं गए. कोविड झाल्यानंतर आपण पुन्हा एकदा आपल्या गोष्टीकडे आलो. Even I was not an exception to that. और डॉक्टर भी कहते कि उसमें वो भी शामिल थे. आणि हे डॉक्टर साहेब म्हणत आहे की मी पण तसाच आहे तुमच्यावर. I got busy with my ministry and the patients and all my daily things what I used to do, and everything just as if forgotten now after that. But that time we did that because we had maybe not fear of the Lord but the fear of death. और उस समय भी क्यों हम वो मध्यस्थी और प्रार्थना और दुआ में इतने बार बैठे और इतना समय दिया, क्योंकि उस समय हमें मृत्यु का डर था. हमें परमेश्वर के डर से भी ज्यादा मृत्यू का डर आणि था. त्यावेळेस आपल्याला देवाच्या भयापेक्षा मृत्यूचा भय होता, म्हणून आपण प्रार्थना, उपवास आणि देवाच्याकडे होतो. So don't be surprised at what is happening in the world, but rather the two verses very important in chapter 24 of Matthew, verse 13 and 14, which say that, but he who endures to the end shall be saved. And then it says, very important, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. इसलिए हम आश्चर्यचकित भी होना चाहिए, क्योंकि ऐसे वचन में लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा. आणि देवाच्या वचनामध्ये असं म्हटलेलं की जो शेवटपर्यंत राहणार आहे त्याचं तारण होणार आहे आणि हे सर्व वचन त्यांच्या जीवनामध्ये परिपूर्ण होणार आहे. That is very important, beloved. It's very important. ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है. आणि हे सर्वात महत्वाची गोष्ट आहे. That who will endure to the last, he only will be sustained and saved. जो अंत तक टिकने वाला है उसी को उद्धार मिलने वाला जो है. शेवटपर्यंत टिकेल तोच करेल असं म्हटलेलं आहे. And secondly, unless this gospel of Christ reaches every person on this earth, the end will not come. और एक बात है, जैसे मत्ती 28 में लिखा है कि जब तक अंत तक प्रभु का वचन प्रचार नहीं होता है, उस समय तक प्रभु का आगमन नहीं होने वाला. जोपर्यंत सुवार्ताची घोषणा प्रत्येक कानाकोपऱ्यामध्ये जात नाही तोपर्यंत परमेश्वराचं आगमन येणार. Today, the question before you and me is that, are we ready for the coming of the Lord? तो आज हमारे सामने एक सवाल है, क्या आज प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार हैं आज क्या? एक प्रश्न तुमच्या समोर आणि माझ्या समोर आहे, देवाच्या आगमनासाठी तुम्ही तयार आहे का? Because what the disciples were asking him is that when would the end come and would be the signs of your coming?
और क्योंकि चेले भी उसको यही सवाल पूछ रहे थे कि कब अंत आने वाला है और अंतिम क्षणों के क्या चिन्ह होने वाले हैं. आणि त्या शिष्यांना पण तोच विचार होता की शेवटचा काळ कधी होणार आहे आणि कधी प्रभू येशू ख्रिस्त येणार आहे. Church, we have to be very serious on this. कलीसिया हमें बहुत ही गंभीर होना आपण चाहिए. गंभीर व्हायला पाहिजे. You and me should realize that we are not here on the earth to stay permanently. हम एक बात जाननी चाहिए कि इस दुनिया हमारा परमानेंट निवास स्थान नहीं आपण है. इथं कायमच राहणार नाही आपल्याला समजलं पाहिजे. And like Pastor Saab said, that no one knows when his or her end would come on this earth. आणि और जैसे पासवान ने आज भी बताया कि हम कोई भी नहीं जानते कि हमारी अंतिम घड़ी कब है. जसं पास्टरने सांगितलं कधी आपल्याला मृत्यू येणार आपल्याला माहित नाही. So the main question remains is that, are we ready? And before that, if we say that we are ready, are we prepared? और तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि फिर हम तैयार है या नहीं. आणि महत्वाचा प्रश्न आपण तयार आहे की नाही. जर असेल तर आपली तयारी झाली का. See, to face any examination in life or to face any kind of test or trial, preparation is the most important part. और अगर हमें कोई भी एग्जाम देनी है, परीक्षा देनी है, उसके लिए तैयारी करनी बहुत ही जरूरी बात है. परीक्षेसाठी आपल्याला त्याची तयारी करायची गरज आहे. If you look to 2 Peter chapter 3, he mentions there that scoffers at that time were saying that whatever you people are saying that Jesus is going to come again, this is all fake. He's not going to come because so much time has passed. He's not coming. That's what they used to say. और इससे आते में ऐसे लिखा है कि जो वो विरोधी लोग थे तो वो बोलते कि आप तो बोल रहे हैं यीशु मसीह आ रहे, अभी इतना समय भी बीत चुका है. आणि ख्रिस्ती विरोधी लोक जे बोलतात आहे की हे सगळं खोटं आहे की प्रभू येशू ख्रिस्त येणार 2024 वर्ष झाले तो अजून आलेला नाही. Bible scholars all over the world are trying to predict the exact year or the date when the Lord would come, but no one knows. Even the Son doesn't know about it. तो फिर तज्ञ जो पवित्र शास्त्र की जो तज्ञ भी है और बाकी के तज्ञ भी ऐसे प्रमाण लगा रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन कभी होने वाला है, लेकिन खुद यीशु मसीह भी नहीं जानते कब उनका आगमन होने वाला तज्ञ है. लोकांना पण ते असा विचार करत आहे किंवा ते सांगत आहे की कधी येशू ख्रिस्त येऊ शकतो आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताला स्वतःला पण माहित नाही की तो कधी येणार आहे. One thing is sure that He is going to come soon. लेकिन एक बात निश्चित है कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आने वाले एक हैं. गोष्ट निश्चित आहे की तो लवकरात लवकर येणार आहे. Every prophecy that has been already fulfilled, which is being fulfilled and will be fulfilled, is indicating towards His coming soon. और हर एक भविष्यवाणी जो वचन में है उसका और जो उसकी पूर्णता का समय हो रहा है. प्रत्येक भविष्यवाणी परिपूर्ण होत आहे. 2015, I'm involved with associated with the ANFI, Evangelical Nurses Fellowship of India. Sister Walker is here, the national coordinator person, national chairperson, and we celebrated the 25 years by God's grace what God had given us successfully to the nurses, the ministry all over the nation and the world also. And that time we had enacted one play, and the theme and the title for that particular 25th silver anniversary was "Behold, the bridegroom is coming." That was taken from Matthew 25:6. और 2015 में जो ENFA के 25 साल पूरे होने के प्रोग्राम का जो मेन टाइटल था वहाँ पे कि देखो दूल्हा आ रहा है, तो उसके बारे में उन्होंने एक ड्रामा भी किया था. 2015 साली ENFI म्हणजे इव्हेंजलिकल नर्सेस फेलोशिप ऑफ इंडिया याचं 25 वर्ष पूर्ण झाल्यानिमित्ताने वधू येणार, वधूची तयारी आहे का याच्यावर एक नाट्य झालेला आहे होतं. I still remember all what not happened when we do rehearsal for that particular drama and all those things, and our nurses enacted so wonderfully there, and it happened at Mahatma Phule Hall over here in Manori, and that was when the first stage program took place in that particular. It was newly built, and it really touched every person's heart in such a way, that people were compelled, and convicted to think on that for so many days. They did not forget about it.
और वो नाट्य का जो रिहर्सल और जो सारी बातें थे, लेकिन जो शीर्षक था और ड्रामा देख के लोगों के अंदर एक हलचल मची और उस सोच में गिर गए कि कैसे उनका जीवन होना आणि चाहिए. हे नाट्य झाल्यानंतर लोकांचं जीवन बदलून गेलं खूप लोकांचं आणि त्यांनी विचार करू लागले की कसं त्यांनी त्याचं जीवन व्यतीत करायचं आहे. It was about the 10 virgins. और वो 10 कुमारी के बारे में थी. शहाण्या कुमारी आणि मूर्ख कुमारी बद्दल म्हटलं We गेलं. all know about this parable. और ये जो संदर्भ बाइबल में जो कहानी है उसके बारे या में हम जानते हैं. बद्दल आपल्याला सर्वांना माहित आहे. 5 were foolish and 5 were wise. 5 मूर्ख आणि 5 शहाण्या होत्या. और 10 में से 5 ज्ञानी थे और 5 मूर्ख थे. And the bridegroom was to come to take them for the banquet. और जो दूल्हा आने वाला था शादी की मेजबानी के लेके जाने के लिए, वधू येणार होता, त्याचे वधू घेऊन वर येणार होता. And 5 of them went to sleep, right? और उसमें से जो Right. 5 मूर्ख स्त्री थी वो सो गई. Sorry? I was सर्व just, 10 झोपी. I was just checking how many of you are sleeping, maybe only. Not 5, beloved. All 10 went to sleep. और All 10 went to sleep. हम देखते हैं कि पूरे 10 के 10 उस समय जब प्रभु का आगमन होने वाला था, उस समय पूरी 10 की 10 स्त्रियां सो गई. प्रत्येक 10च्या 10 स्त्रिया झोपल्या होत्या. The only big difference was the wise ones were carrying extra oil with them. लेकिन एक बात उनमें एक ही फर्क था कि जो 5 ज्ञानी स्त्री थे उनके पास और ज्यादा तेल था. Let me ask you one. एकच होतं की जे 5 शहाण्या होत्या त्यांच्याकडे तेल होतं. Let me ask you one question to myself also. और एक प्रश्न पूछना चाहते हैं. एक प्रश्न विचारतो मला स्वतःला पण, If the very next moment अगर अगले ही क्षण में दुसऱ्या क्षणी the Lord happens to be here, अगर एक क्षण में अभी हम देखते हैं कि अगर प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पधारते हैं तो जर पुढच्या क्षणी जर प्रभू येशू ख्रिस्त या ठिकाणी आला तर, because it says he comes like a thief, nobody knows. क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु एक चोर के समान आने आणि वाले हैं. देवाचं वचन म्हणत आहे की जो चोरासारखं येणार आहे. You need not give answer or reply to me, but ask yourself and I'll ask myself that am I prepared for that? Am I ready for that? तो हमें कोई जवाब नहीं चाहिए, लेकिन हम खुद से ही सवाल पूछेंगे कि ये प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार है क्या? आपण स्वतःला आणि मी मला पण विचारतो की मी प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी माझी तयारी आहे. People may be knowing me as a doctor, as a person associated with so many ministries, always running around for the Lord. But the question is that how does the Lord wants me to be found when He is going to come? और एक सवाल है कि जैसे डॉक्टर ने खुद का उदाहरण दिया कि वो बहुत सारे सेवकाई के में है, लेकिन वो सेवकाई के बावजूद प्रभु की नजर में वो कैसे है? आणि देवाच्या सेवकांनी सांगितलं की ते वेगवेगळे सेविकामध्ये आहे आणि ते सेवा करत आहे, परंतु त्यांची परिस्थिती कशी आहे. When He comes, He wants us to be found without a single wrinkle and spotless, blameless, holy and godly people. और प्रभु जब उसके दुल्हन के लिए आ रहा है तो उसे ऐसी दुल्हन चाहिए जो डाक और झूठी बिना की है. आणि ज्यावेळेस तो येणार आहे त्याची एकच अपेक्षा आहे की त्याची वधू निर्दोष, निष्कलंक, दागविरहित आणि स्तुतिविरहित अशी पाहिजे. So church, let me tell you one thing, reminding myself also that no other thing is important in life. Let me tell you, yes, our jobs, our professions, taking care of our families, everything is there at that place. God has given that as a channel for our living, for our flesh. But what is most important is that are we preparing for His coming? और एक ही महत्व की बात है, हम भले हमारे परिवार के लिए, हम हमारे खुद के लिए, हमारे जीवन में जो जीना है उसके लिए काम करते रहे, ये सब महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने के लिए हम क्या तैयारी में और कैसे है? आपण आपल्या स्वतःसाठी, कुटुंबासाठी, सर्वांसाठी आपण काम करतो, पण प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या आगमनासाठी आपण तयारी करत आहे. So before I conclude this message today, there are 5 takeaway points for all of us.
और ये उपदेश को समाप्त करने के पहले एक 5 हमारे लिए मुद्दे डॉक्टर दे रहे आपण हैं. हे संपवण्याच्या अगोदर 5 मुद्द्याकडे वळूया. How can we be ready for the coming of the Lord? हम प्रभु के आगमन के लिए कैसे तैयार हो आपण सकते हैं. देवाच्या आगमनासाठी कशी तयारी करत आहे. See, we are all safe people. Amen. Praise God, right? और हम सब यहाँ पे सुरक्षित लोग हैं. सॉरी, हम सब उद्धार पाए हुए लोग आपल्या हैं. सर्वांचं तारण झालेलं आहे. Because the Lord Jesus Christ gave his life as a ransom on that cross of Calvary 2000 years back. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हम उसका खुद का लहू हमारे लिए बहाकर अपने हमें उद्धार 2 दिया है. वर्षापूर्वी प्रभू येशू ख्रिस्तानी 2000 वर्षापूर्वी प्रभु येशू ख्रिस्तानी त्याचं रक्त सांडून आपल्याला तारण दिलं. Church, we are very special people, and what happens, we take our salvation very lightly and we take it for granted. हम बहुत ही प्रभु के सामने एक मूल्यवान लोग हैं, लेकिन प्रभु ने दिया हुआ उद्धार हम बहुत ही बिना मोल के ऐसे उसको मानते हैं. आपण मौल्यवान लोक आहे, पण त्यांनी दिलेला उद्धार सहजरीतीने आपण घेत असतो. Because we didn't have to pay any cost for that. क्योंकि उसके लिए हमें कोई भी दाम नहीं चुकाना आपल्याला पड़ा. त्याच्यासाठी काही किंमत चुकवली गेली देवा लागली. It was all paid by him. वो सारा हमारा जो कर्ज है वो उसने खुद ही उसको उसके ऊपर लिया. आणि ती सर्व किंमत प्रभू येशू ख्रिस्ताने आपल्यासाठी चुकवली. We all know that salvation is a free gift. It has happened through the grace of God and through our faith. हम सब जानते हैं कि उद्धार मुक्त है क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह के दया से मिला है. कारण हे मुक्त आणि प्रभू येशू ख्रिस्ताद्वारे ते मिळालेलं आहे. But the very first thing we need to do is that never to take our salvation for granted, but keep on working on that salvation every day, every moment. और तो पहली बात ये है कि जो उद्धार हमें मुफ्त में मिला है उसे सहज नहीं लेना चाहिए, लेकिन उद्धार के ऊपर रोज हमें काम करना है. कारण सहजरीतीने घेऊ नका, पण रोज आणि रोज आपण त्या उद्धारावर काम करायला पाहिजे. It's not only that during the service of Good Friday that we remind ourselves about that death of his on the cross of Calvary. उत्तम शुक्रवार के दिन ही हम प्रभु के उस मरण की याद नहीं करना चाहिए. उत्तम शुक्रवारच्या दिवशीच आपण प्रभू येशू ख्रिस्ताबद्दल विचार करायला नाही पाहिजे. So keep working on the salvation. Secondly, be filled with the Holy Spirit. तो पहली बात है कि प्रभु का जो उद्धार है उसके ऊपर काम करना. दूसरी बात है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से परिपूर्ण होना. दुसरी गोष्ट पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने परिपूर्ण व्हा. Because as it says in the book of Zechariah, not by might, not by power, but by the Holy Spirit of God. Amen. और क्योंकि Yes. ज़करिया में लिखा है बल से नहीं कि हमारी शक्ति से नहीं, लेकिन प्रभु के आत्मा के द्वारा. जकर्यामध्ये लिहिले बलाने नाही, पराक्रमाने नाही, पण त्याच्या आत्म्याने सिद्धीस होणार. So the Holy Spirit is not anything like, but it is the third person of the Trinity. और त्रय के देव परमेश्वर का पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक हिस्सा है. पर्सनॅलिटीचा एक हिस्सा आहे. Before his ascension to the heavens, he gave the Holy Spirit to you and me. और प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया को छोड़ के जब उनका स्वर्गारोहण हो रहा था उस समय उसने अपनी पवित्र आत्मा भेजा. परमेश्वरची सेवा संपल्यानंतर त्याने आपल्याला पवित्र आत्म्याचा अभिषेक दिला. And not just to work miracles and deliverances, but the most importantly, he said that you will go and witness me to the ends of the earth. और ये पवित्र आत्मा का कार्य की सिर्फ चंगाई और चमत्कार के लिए नहीं है, लेकिन हमें प्रभु के एक सुसमाचार देने वाले लोग होने चाहिए. चिन्ह चमत्कारासाठी त्यांनी पवित्र आत्मा दिला नाही, पण आपण त्याची सुवार्ता सांगण्यासाठी दिला. Next is don't stop coming together. Be in the community of believers as much as you can. तो पहली बात है हमारे उद्धार को, दूसरी बात है पवित्र आत्मा से भरने की, और तीसरी बात है संगति में रहने की. आणि तिसरी म्हणजे एकमेकांसंगती तुम्ही संगतीमध्ये राहा. The next is that you need to understand, come more and more closer to the Lord Jesus Christ. और चौथी बात है प्रभु के साथ हमारे संबंध रोज और दिन प्रतिदिन. चौथी गोष्ट प्रभू येशू ख्रिस्ताचा संबंध वाढवून त्याच्या जवळ आणि जवळ जायला पाहिजे. Because if the bride doesn't understand the bridegroom, how can they stay together? अगर
दुल्हन दूल्हे को ही नहीं समझ सकेंगी तो एक साथ कैसे रहेंगे. वर आणि वधू एकमेकांना जर ओळखू शकत नाही तर एकत्र कसे राहू शकतात. See, many times we only know the Lord as our Savior, our Lord, but He is much more than that. Understand who He is. Every day through His Word, come closer to the Lord Jesus Christ. Understand who is He and what He can do for you and me. और सिर्फ प्रभु के को हम एक हमारा पिता या हमारा परमेश्वर या हमारे उद्धारक ये तो जानते ही हैं, लेकिन उससे भी बढ़कर वो हमारे लिए है. और वो जानने के लिए हमें प्रभु का वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है. तो फक्त आपल्याला तारणारा नाही एवढंच संतुष्ट होऊ नका, पण तो आपल्यासाठी काय करू शकतो, तो काय करणार आणि आपल्याला तो काय देणार आहे याच्याकडे आपल्याला हे समजलं. And lastly is that don't forget that this mission, this great commission has been given not only to churches or to Gideons or in parishes organizations, but to every person who calls herself or himself as the disciples of the Lord Jesus Christ. और तो एक बात हम समझनी चाहिए कि जो प्रभु का वचन बांटना है वो सिर्फ कलीसिया नहीं करने वाली या कुछ तो ऐसे स्थान या इंस्टीट्यूट है उनकी ये जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हम हर एक जन की वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या जिम्मेदारी है कि हमें वो बांटना है. आणि देवाचं वचन हे वाटण्याचं फक्त गिडियनचं किंवा काही संस्थेचं काम नाही, पण आपल्या प्रत्येक जण जो प्रभू येशू ख्रिस्ताचा स्वीकार करतो प्रत्येकाची जबाबदारी आहे की सुवार्ता जाऊन सांगणं. Beloved, these are the 5 takeaway points for you and me today. और जो अभी 5 बातें बताइए, आज ये 5 बातें हम ध्यान में रखना चाहिए. आपण एक 5 गोष्टी आपल्या बरोबर घेऊन जाऊ शकतो आज. See, beloved church, the times of trials, testing will always be there. Every person in this world, and especially the believers, we will have battles of our own in our lives. और एक हम ध्यान में रखना चाहिए कि परीक्षा और परीक्षा का समय वो टलने वाला नहीं है, वो तो रहने वाला ही है. आणि तुम्हाला प्रत्येकाला परीक्षेतून जावंच लागणार आहे. त्याच्यातून कोणच वाचणार नाही. Whether it be the youngsters, the elderlies, everybody is going through trials and testing time. The elderly are facing problems like loneliness. Nobody goes, meets them, tries to understand what they want to share with them. Today, what is lacking is that nobody is speaking to or talking to each other, getting to know what we have in our hearts and minds. Everybody wants to share something with someone. और आज का माहौल ऐसा है, चाहे वो जवान हो या बूढ़े हो, वो अपनी यात्रा या दौर से जा रहे हैं. हम देखते हैं जो बुजुर्ग लोग हैं वो इतने अकेले हो गए, उनसे बात करने के लिए कोई नहीं है. जो जवान है उनकी भी अपनी और अलग तरह की समस्या चल रही है. तो हर एक जन अपनी परीक्षा में चल रहा है. आपण प्रत्येक जण बघत आहे, तरुणी असू द्या, वयस्कर असू दे, प्रत्येकाला ह्या गोष्टीतून जावं आहे, काही इमोशनल गोष्टीमध्ये जात आहे. एकमेकांना आपण काउन्सिलिंग करत नाही, एकमेकांना वेळ देत नाही आणि प्रत्येक जण वेगवेगळ्या परिस्थितीतून भयानक परिस्थितीमध्ये ते जातात. We are all busy with this, isn't it? Even me, myself also. We are busy with this. आणि आपण सर्वजण एका गोष्टीच्या बद्दल बिझी आहे. और सभी के हाथ में हमारा पता है वो जो शैतान का डब्बा दिया हुआ है वो हमारे Yes, सबके हाथ में हो रखे very हैं. rightly, very rightly. It has been handed over from the Satan only. Let me tell you. Lastly, one verse to tell that trials, going through fiery testing would be there, like Shadrach, Meshach, Abednego also went. You know what kind of temperature they were facing in that furnace, but they believe in the Lord. They were never shaken. They never compromised. और जो परीक्षा तो वो रहने वाली है, हम जानते हैं वो जो कहानी शद्रक मेशक अबेदनगो की, जिनको वो अग्नि में डाला गया था और अग्नि का जो तापमान था वो सबसे ज्यादा था, फिर भी वो उस तापमान में कैसे टिके रहे. आपण शद्रक, मेशक, अबेदनगोने बघितलं तर त्यांना त्या अग्नीमध्ये टाकण्यात आला आणि नंतर काय झालेलं, ती अग्नी दुप्पट करण्यात आली आणि त्याचं तापमान किती भयानक होतं आपल्याला माहिती नसतं. Yes, but they stood firm for the Lord. And what 1 Peter 4:12 says, just listen carefully. Beloved, do not be surprised at the fiery trial when it comes upon you to test you. Then he says that as though something strange were happening to you, but rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when His glory is revealed. Amen. और
जैसे शद्रक मेशक अबेदनगो उस अग्नि में टिकी रहे, वैसे ही पेत्र में ऐसे लिखा है कि अब अनेक प्रकार के छल और वेदना और परीक्षाओं से जाएंगे, लेकिन अंत तक हमें टिका उस पे रहना ही चाहिए, तो ही हमें प्रभु का वो आगमन मिल सकता है। पेत्रामध्ये लिहिल्याप्रमाणे असं म्हटलेलं आहे की तुम्ही प्रत्येकाने दुःख, कष्ट, निंदा, अपमानामध्ये जावंच लागणार आहे आणि ते आपल्याला प्रत्येकाला जायचं आहे. Yes. Binu Raghunath came from a very poor family and very difficult to even meet the ends of family. He did not have any kind of earnings. He had responsibilities of his parents, his brothers and sisters. Binu Raghunath. बीनू रघुनाथ एक ऐसे व्यक्ति था वो जो बहुत ही गरीब कुटुंब से आया था और उसके घर की जो जरूरत है उसको पूरी करने की भी उसमें क्षमता नहीं थी. बिनू रघुनाथ हे असे व्यक्ती होते की ते फार गरीब घराण्यातून आलं आणि त्यांच्या घरामध्ये पोहोचायला पण त्यांना घरी पैसे नव्हते. Some of his friends, they just suggested him to go to some big metro city like Delhi or Mumbai where he can earn more money. और उनके दोस्तों ने कहा कि आप बड़े शहर में जाके कुछ पैसा कमाएं. त्यांच्या मित्रांनी त्यांना सल्ला दिला की दिल्ली किंवा मुंबईला जा आणि तुम्ही पैसा कमवा. So Binu Raghunath decided to go to Delhi and he went there. और वो उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली जाऊंगा. ते दिल्लीला गेले. And but after going there, he got caught up into some wrong kind of friends over there. और जब वहाँ पे गए तो वो कुछ गलत संगति में गिर गए. वाईट चुकीच्या मार्गामध्ये दिल्लीमध्ये ते लागले. And these people, they were into drug trafficking. और ये लोग जिसके साथ मिल गए वो लोग कुछ अम्ल पदार्थ में थे. नशाचे पदार्थ विकण्याच्या पाठीमागे हे लागले. And Binu started earning lots of money. और फिर बीनू को भी ज्यादा पैसा मिलने लगा. बिनू हे ग्रस्त ते पैसे कमवू लागले. He was arrested a couple of times. उनको बंदीगृह में जाना पड़ा. अनेक वेळेस त्यांना तुरुंगात जावं लागलं. And it happened so that once when he was arrested, he was put into the Tihar jail of Delhi. और एक दिन ऐसी वो उनको अरेस्ट किया तिहाड़ जेल दिल्ली में. त्यांना तिहार जेलमध्ये टाकण्यात आलं. And Binu, what he saw there, that some people, they came there with such kind of blue books. Actually, they were the Gideon people from there, Gideon members, and they distributed the copy of the New Testament free of cost to the prisoners over there. और वहाँ पे बीनू ने देखा कि कुछ लोग आके वहाँ पे ये नीली किताब दे रहे थे. वो लोग गिडियन मिनिस्ट्री से थे जो जेल में बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन करते आणि थे. तिहार तुरुंगामध्ये गिडियनचे काही लोक जाऊन त्या तुरुंग कैदींना बायबल वाटले. But Binu was surprised to see that the prisoners who could read, they did not read that Bible of the New Testament. Instead of that, they tore the pages from that New Testament. They rolled them into cigarettes of marijuana, fuganja जिसको बोलते हैं, और tobacco, and they smoked it. लेकिन वहाँ के जो बंदीवान थे वो बाइबल के पेपर्स को फाड़ कर उसका एक सिगरेट ड्रग्स भर के वो करते थे. आणि त्या ठिकाणी तिहार तुरुंगामध्ये या भावांनी बघितलं की ते काही लोकांनी कैद्यांनी ते बायबलचे पानं फाडले आणि त्याच्यात अफू आणि चरस भरून ते प्यायले. Binu had one friend over there. He was not in the jail, of course. He belonged to the AG Church in Delhi. और बीनू के दोस्त थे वो तुरुंग में नहीं थे लेकिन एजी कलीसिया में वह थे. बिनूचे एक मित्र एजी चर्चचे दिल्ली मधले होते. And he used to, frequently come and visit Binu, and he used to try to, comfort him, saying that don't worry, we are praying for you, my church is praying for you, and God will definitely deliver you. और उनके दोस्त उनको मिलने आते थे और उनको सांत्वना देते थे कि फिक्र मत करना, कलीसिया आपके लिए दुआ कर रही है, हम सब आपके साथ हैं. आणि त्यांचे मित्र त्यांना येऊन सांगायचं, सांत्वन द्यायचे की आमचं चर्च तुमच्यासाठी प्रार्थना करत आहे आणि तुमची मुक्तता लवकरात लवकर या जेलमधून होणार. But Binu did not have any hope and was very frustrated and depressed, And one day it happened so that out of the torn pages of the New Testament, there were some 2-3 pages lying over there, and the Holy Spirit prompted him, and Binu picked up one of the pages, torn pages, and started reading. और उनकी इस भयानक अवस्था में वो पूरे तरह से तितर-बितर हो गए थे. उस समय उन्होंने वहाँ पे देखा कि 2-3 ऐसे लिफाफे या पेजेस नए नियम के गिरे हुए हैं
और पवित्र आत्मा ने उनको ऐसे प्रेरित किया, वो जो पेजेस गिरे थे उनको उठाने के लिए। विनू ब्रदरने बघितलं की त्या तुरुंगामध्ये काहीतरी असे बायबलचे पानं फेकलेले होते आणि पवित्र आत्म्याने त्यांना सांगितलं ते उचल. And the Holy Spirit spoke to Binu through the word of God, and Binu realized there and there that there can be only one Savior who can save him, who can forgive his every wrongdoing, whatever he had done. And that same moment, Binu, in simple words, say that if there is any God who can forgive me, I ask for forgiveness, and I also make a commitment that if I am released from the jail, I make a commitment with that God. I promise him that I will for lifelong will serve him. और उसी वक्त जब उसने वो वचन पढ़ा तो उसको ऐसे लगा कि अगर कोई सच्चा खुदा है जो मुझे इस जेल से छुड़ा सकता है तो मैं उसकी ही पीछे जाऊंगा, उसकी सेवा हे करूंगा. वाचल्यानंतर ब्रदर बिनूला पवित्र आत्म्याने स्पर्श केला आणि त्यांनी सांगितलं जर देव जिवंत असेल तर त्या देवाच्या पाठीमागं मी तुरुंगातून सुटल्यानंतर त्याची सेवा करेन. And finally God answered the prayers of his friend and the people from AG Church, and Binu Raghunath was released from the jail. और प्रभु ने उसके और उसके दोस्तों के दुआ का जवाब दिया और उसको उस बंदी गृह से छुटकारा प्रभू मिला. येशू ख्रिस्ताने बिनूची प्रार्थना ऐकली, त्याच्या मित्राची प्रार्थना ऐकली, एजी चर्चच्या लोकांची प्रार्थना ऐकली आणि तो तुरुंगातून मुक्ती झाला. And to the contacts of his friend who belonged to the AG Church, he got a job. There was a theological college which was run by the AGs, and he got a job on the dean's car as a chauffeur, as a driver. और फिर एक थियोलॉजिकल कॉलेज की डीन के जो थियोलॉजिकल कॉलेज के डीन थे उनके कार पे वो ड्राइवर बन के गया. थियोलॉजिकल कॉलेजचे जे डीन आहे त्याच्या कारवर ते ड्रायव्हर म्हणून काम करत होते. And as he used to daily take the dean with him, as a driver, one day it happened that the dean asked him about his life, about his background, and Binu shared that testimony, and the dean said that Binu, your calling is not to be a driver on my car, but God has some other purpose and calling for your life. From tomorrow, you will continue to be my driver on my car, but along with that, you will come and sit in the class and you will study the Bible. तो जब वो ड्राइवर की नौकरी कर रहे थे तो वो डीन ने पूछा कि आपकी गवाही, आपकी पार्श्वभूमि क्या है. तो जब नीलू ने अपनी गवाही दी तो डीन ने कहा कि आपका तो बड़ी भुलावट है, आप ड्राइवर की जॉब के लिए नहीं चुने हुए हैं. तो कल से जो क्लास में लेता हूँ आप मेरी नौकरी भी करो और वो क्लास में भी मेरी क्लास को भी अटेंड करो. मी त्या बिनूला बोलल्यानंतर त्यांनी त्याची कहाणी सांगितली आणि देवाने त्या दीनच्या मनात कार्य केलं आणि त्यांनी सांगितलं की तुझं पाचारण साधारण नाहीये, तू ड्रायव्हरचं काम करू शकत नाही, त्याच्यापेक्षा अधिक उंच पाचारण आहे आणि उद्यापासून तू बायबलचा अभ्यास त्या वर्गामध्ये कर. Binu completed his Bible studies, and today Binu is not a Binu who used to be into drug trafficking, but Binu is a pastor now, and he happened to be the very first missionary going to Azamgarh district in UP, and now today he is overseeing almost 500 churches of AG. आणि आझमगड या ठिकाणी बिनू मिशनरी म्हणून गेले आणि 500 चर्च एजीचे ते चालवत आहे. Praise God. और बीनू अब एक साधारण व्यक्ति बने नहीं, लेकिन एक मिशनरी बनकर वो आजमगढ़ में वही पहले ऐसे व्यक्ति थे जो आजमगढ़ में जाकर प्रभु की सेविकाई की और आज 500 भी अधिक मंडली के ऊपर वो निगरानी कर रहे हैं. As the word of God says in Isaiah 55:11, that the word that goes forth from my mouth will never come to me void unless and until it accomplishes the purpose I have sent it for. Amen. जैसे ईशाया की किताब 55:11 में लिखा है कि जो मेरा वचन है वो कभी भी खाली नहीं लौटेगा. आणि देवबाच्या वचनामध्ये असं लिहिलेलं आहे एशियाच्या 55 अध्याय 11 वचनामध्ये की माझं वचन एक खाली कधीच येणार नाही. One more testimony and then conclude. आणि एक अजून साक्ष सांगून मी समाप्त करणार. This is a very fresh testimony. That's why I want to ही share. आत्ताच नुकतीच घडलेली साक्ष आहे. This is about a girl who belonged to a Brahmin family from Chennai. और एक गवाही जो अभी हाल ही
अभी वो ये एक लड़की है जो ब्राह्मण परिवार से आती है. She belonged to, yeah, एक लहान मुलगी ब्राह्मण कुटुंबामधून देवाकडे आली. she belonged to a very staunch Brahmin family. और बहुत ही ऐसे रूढ़ ऐसे ब्राह्मण परिवार से आती है. आणि ती ब्राह्मण कुटुंबातून आलेली आहे. And she happened to be going to a convent school, a Christian convent school in Chennai. और चेन्नई में एक मसीही ऐसी शिक्षण स्कूल में आणि चेन्नई या ठिकाणी कॉन्व्हेंट स्कूल मध्ये तिचा अभ्यास झाला. And while she was in the standard 1, first grade, one of her friends gifted her one New Testament which was distributed by the Gideons in the school. और जब वो स्कूल में थी तो उसकी पहली कक्षा की जो सहेली थी उसने उसको एक बाइबल नया नियम दिया था. आणि ज्यावेळेस ती पहिली मध्ये होते तिच्या मैत्रिणींनी तिला गिडेन्सनी ते बायबल शाळेत वाटलेलं दिलं. And she was so happy, she thought such a small book like a diary, I can carry it anywhere, keep in my purse, my bag. And she started reading it, knowing not what exactly it was. और वो खुश हुई और वो उसको लेकर उसको बैग में रखने लगी और उसको पढ़ने भी लगी. उसको वो नहीं जानती थी उसमें क्या है. आणि ती काय करणार, तिला बायबल बद्दल माहित नव्हतं, पण ती घेऊन वाचू लागली, आपल्या बॅगेत ठेवू लागली आणि तिला वाटलं एक छोटीशी डायरी आहे. Now remember, first standard means the age should be anything between 5 to 7 years. और पहली कक्षा बोलेंगे तो उसकी उम्र एक 5 या 7 साल तक रहेगी. आणि पहिलं वर्ग म्हणजे 5 ते 7 वर्षाची असतात. After that, nothing happened. उसके बाद कुछ भी नहीं आणि हुआ. त्याच्यानंतर काहीच घडलं नाही. And when Uma was in standard 12, junior college, और वो लड़की का नाम उमा है. जब वो 12वीं कक्षा में गई आणि उमा ज्यावेळेस 12वी वर्गात गेली, age should be anything around 17, 18, whatever, yeah. उसकी उम्र एक 17-18 साल रह सकती त्यावेळेस है. ती 17-18 वर्षाची असेल. One of her believer friends, she invited her to one of the meetings of the Scripture Union. और तो उसकी एक मसीही दोस्त ने उसको एक मीटिंग को बुलाया. आणि तिच्या एका मैत्रिणीने जी ख्रिस्ती होती तिला स्क्रिप्चर युनियन या मीटिंगला बोलवलं. And there happened to be one lady who was speaking from the word. और वहाँ पे एक महिला प्रभु के वचन से बात कर रही आणि थी. एक सिस्टर त्या देवाच्या वचनातून बोलत होती. She was sharing from Isaiah 44. और एशिया 44 से वो बात कर रही एशिया थी. 44 अध्यायामधून त्या बोलत होत्या. And she was sharing that how the Lord hates the idol worship. और वहाँ पे ऐसे लिखा है और वो बता रही थी कि कैसे प्रभु यीशु मसीह को मूर्ति पूजा और मूर्ति पूजा अच्छी नहीं लगती. मूर्तीच्या विरुद्ध कसं आहे असं त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. It also mentions there that the same wood which is cut from a tree and used to make into idols, the same wood from that tree is used to cook the food as a fuel. और वहाँ पे ऐसे लिखा है कि जो मूर्ति बनाई गई है, जिस झाड़ से जिस लकड़ी से वो बनाई जाती है, वो लकड़ी को तो खाना बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता ज्या है. झाडापासून मूर्ती बनवली जाते त्या झाडापासून इंधन पण वापरलं जातं असं तिने ऐकलं. And this sister who was the speaker, knowing not any background history of Uma, she straight away pointed to Uma saying that if we have that thinking, what God has given us, think about this. और वो महिला जो प्रचार कर रही थी उसने तुरंत अपनी नजर उमा की ओर देखी और बोली कि जो आप सोच रही है आप उसके बारे में सोचना. ती बहीण ते वचनातून बोलत होती. तिने उमाकडे बोट दाखवलं आणि सांगितलं तू याच्यावर विचार कर. Uma went home and she opened up that very New Testament which was given in the first standard. She started reading and she came to the saving knowledge of Christ and she accepted the Lord as her Savior. Amen. तो उमा को दिया हुआ पहली कक्षा का बाइबल उसको घर जाके पढ़ने लगी और प्रभु के उद्धार आणि में आई. 12वी नंतर तिने काय केलं, परत घरी गेली आणि त्या पहिलीमध्ये मिळालेलं पवित्र शास्त्र गिडेन्सने दिलेलं तिने उघडून वाचू लागलं आणि येशूचा तिने स्वीकार केला. But the parents said, yes, you might have accepted the Jesus as your God, but you will keep Jesus outside the house, not bring him inside. लेकिन उसके माता पिता उसके विरुद्ध गए और कहा हाँ प्रभु का आपने प्रभु को ग्रहण किया रहेगा, लेकिन उस प्रभु को आपको दरवाजे के बाहर ही रखना है. आणि तिच्या आई वडिलांनी सांगितलं तू प्रभू येशू ख्रिस्त स्वीकार केला तर नो प्रॉब्लेम,
पण तुझ्या ख्रिस्ताला आमच्या घराच्या बाहेर ठेव, आत आणू नको. So Uma used to go to the restrooms, read the Bible over there, and she used to shed tears and spray over there. और वो ऐसी करती थी, बाथरूम में जाके प्रभु का वचन पढ़ती थी, वहाँ पर प्रभु को से रोते रोते बात करती थी. आणि बाथरूम मध्ये जाऊन ती रडायची आणि देवाचं वचन वाचायची. And when the time came for Uma to get married, the challenge was given to Uma that if at all you want to marry a Christian boy, the condition is that the boy also should be converted from the same community that we belong to. जब शादी का समय आया तो उसके माता पिता ने कहा शादी अगर आपको करनी है मसीह से तो वो मसीह लड़का भी हमारे ब्राह्मण बैकग्राउंड से ही होना चाहिए. आणि ज्यावेळेस तिचं लग्नाची सवय आली, त्या आई वडिलांनी सांगितलं तुझा होणारा जो पती तो पण ब्राह्मण कुटुंबातून परिवर्तित झालेला पाहिजे. Uma started praying, she came on her knees and God answered her prayers and she got that kind of alliance. Praise God. और उमा ने दुआ की और प्रभु ने उसका जवाब दिया और एक ब्राह्मण परिवार से प्रभु के पास आया हुआ ही लड़का उसको पति के रूप में मिला. देवाने उमाची प्रार्थना ऐकली आणि तसंच तिला ब्राह्मण कुटुंबातून देवाकडे आलेला व्यक्ती तिच्या जीवनामध्ये They आला. both are in the US, both are working. Uma is a science professor and God has blessed them with 2 sweet children also. Both are into ministry as well. आज दोनों भी यूएस में है, तो उनको प्रभु ने बच्चे भी दिए और दोनों काम करके सेवकाई भी कर रहे हैं. दोघं दोन लेकरं आहेत, त्यांनी युएस मध्ये असून परमेश्वराने आशीर्वादित केल्या. दोघ पण देवाची सेवा करत आहे आणि उमा सायन्सचे प्रोफेसर आहे. The testament doesn't end here. और ये साक्षी यहाँ पे खत्म नहीं हो रही है. साक्षी इथं समाप्त होत नाही. Then came the pandemic time, the COVID. आणि कोविड आला. और फिर अभी कोविड के समय And just prior to COVID, और कोविड के पहले ही one day when Uma was feeling very low, she was nervous on some matter. She was, she was remembering her parents, and then she called up her dad on a video call. और उमा को बहुत ही ऐसे नीचे लग रहा था, दुखी लग रहा था. उस समय उन्होंने अपने पिता को वीडियो कॉल किया. उमाची तब्येत एवढी ठीक नव्हती. एक दिवस आधी कोविडच्या तिने तिच्या वडिलांना बोलवलं. And then to her surprise, her father, her dad started, comforting her from the word of God. तो उसको इतना आश्चर्य लगा कि जब भी उसने अपने पिताजी को फोन किया तो उसके पिता ने उसकी सांत्वना प्रभु येशू के वचन के से की. तिच्या वडिलांनी काय केलं, उमाला त्या देवाच्या वचनातून सांत्वन करू लागले. And she was so surprised, said, Dad, how did this happen? Then he said that one day I was not feeling very well and I was remembering all your memories. So I went upstairs in your room. I opened up that cupboard. I started going through your books and your belongings. And then I found this blue colored small book. I just started flipping the pages. I opened it up. And the special feature about the Gideon Bible is that in the very beginning pages, we have an index which helps you in the time of need. All the references are there. तिच्या वडिलांनी तिला सांगितलं, मी पण एका काळी फार दुःख होतं, तुझी आठवण करत होतो आणि त्यावेळेस तुझ्या रूम मध्ये गेलो आणि तुझ्या पुस्तकामधून ते बायबल उघडलं आणि वाचलं आणि परमेश्वर माझ्या संगती बोलला. और उसके पिताजी ने कहा जब मैं भी मेरे दुख के समय से गुजर रहा था तो आपकी याद आने के टाइम में आपके रूम में गया, कबर में आपके किताबों में आपका बाइबल मुझे मिला और जब ये बाइबल पढ़े तो गिडियन बाइबल में हमारी जैसी जरूरत होती है उस हिसाब से वहाँ पे वचन दिए होते हैं, वो पढ़ के प्रभु ने उनका भी उद्धार किया. And Uma asked her father, what about mom? He said, no, your mom is still in the same faith, but let us pray for her. तो उसके उमर में मम्मी कैसी, मम्मी का क्या विश्वास है? तो उन्होंने कहा कि मम्मी में अभी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, हम आपके मम्मी के लिए दुआ में याद करेंगे. आणि तिने विचारलं आणि वडिलांना आईची परिस्थिती काय, म्हणले अजून आई देवाकडे आलेली नाही, आपण तिच्यासाठी प्रार्थना. And then the COVID time came. और फिर कोविड आ गया. आणि कोविड मध्ये And everywhere the fear of death struck. और फिर मृत्यु की जो भयानक परिस्थिति आ गई. मृत्यूचे भय सगळ्यांवर आला. Uma's mom also was under that fear.
और उमा की माँ भी वो भय में आ गई। उमाच्या आईला पण ते भीतीमध्ये And होती. then Uma started calling her on a video call and tried comforting her through, Psalms like 91, Psalms like 121, 23. और फिर उमा अपने माँ को फोन करके करके उसकी सांत्वना प्रभु यीशु के वचन, जो भजन संहिता है 91वें भजन संहिता, 23 भजन संहिता, उसके द्वारा उससे बात आणि करती तिची उमा तिच्या आईला फोन करून व्हिडिओ कॉल करून देवाच्या वचनातून सांगू लागली. भजन संहिता 23, 121 आणि 91, 92 वेगवेगळे भजन संहिता. And today Uma's mother comforts other people through such psalms. और आज उमा की माँ भी लोगों का सांत्वना प्रभु के वचन के आज द्वारा उमाचे करती है। आई वडील आणि ती पण सर्वजण देवाच्या वचनातून लोकांना ते सांगत आहे. So God's word never comes void, and the Gideons for the last 125 years, almost in 199 countries of the world, in 109 different languages, the New Testaments are printed and they are distributed free of cost, along with the gospel of Christ and our own testimony, to hotels, motels, schools, colleges, institutions, nursing homes, prisons, reformation homes, and even the armed personals. और जैसे हमने एशिया 55:11 में पढ़ा है कि प्रभु का वचन कभी भी खाली लौटता नहीं है। आज गिडियन की सेवकाई 1 से 99 Yeah, 125 years, 125 साल, 199 countries, 199 देशों में 109 languages of the और world 109 भाषांतर में being distributed. प्रभु का वचन की हम बांटते हैं। Yeah, and today as I finish and conclude, there are 3 very humble requests. तो जैसे अभी समाप्ति पर हम आए तो 3 एक नम्र विनती आपसे। Church, please pray for the Gideons. पहली बात है एक गिडियन मिनिस्ट्री के लिए आप दुआ करना। We are in difficult times. It is very difficult to go and reach people with the word of God. आज बहुत ही कठिन समय है, प्रभु का वचन देने के लिए बहुत ही दिक्कत हो रही है। And but still God is gracious to us. Secondly, we need laborers. दूसरी बात है कि खेत तो पका है लेकिन वहाँ पे कामगारी कम है। Amen. तो आज गिडियन की सेवकाई का जो बोझ उठाने के लिए काम करने वाले लोग चाहिए। In the city of Pune, where the population is almost now reaching 1 crore, along with Pimpri-Chinchwad if we take, और सिर्फ पुणे शहर में जहाँ की लोक संख्या 1 करोड़ तक जा रही है, we need more laborers. तो हमें काम करने वाले लोग चाहिए। So after the meeting, I will be here. One of my brothers, he is the president of our camp, Vanodi camp, Jitesh Khara. We are here. Even Smita is here, my wife. Please meet us. It's very simple. It will take just 5 minutes to fill this form, and the annual fee of 2,100 rupees, 2,100 for the husband and wife, and if a single brother 1,500, and you become a part of Pune Gideons. और फिर ये फॉर्म भरिए जिसकी खाली कुछ इतने कम पैसे 2100 रुपये अगर दोनों पति पत्नी आना चाहिए सेवकाई के लिए, और सिर्फ अगर भाई आना चाहते हैं तो उसके लिए 1100 रुपये 1500 रुपये है। और ये सेवकाई के बारे में सिस्टर स्मिता और ब्रदर खराब को हाथ कहते हैं, वो आपको बताएंगे ये सेवकाई के में आप कैसे मदद कर सकते हैं। We also have Brother Amit Sapde with us. He is also a part of our family. You can meet him as well. And our own Pastor Saab has been a very senior Gideon for us. और अमित भाई भी यहाँ पे है और हम भी यहाँ पे हैं, जो हम बहुत काल से प्रभु की इस सेवकाई में चल रहे हैं। So please become members of Gideons and be a part. And even if one soul is won through you, if one person is reached with the Bible through you, it will be a great, kind of a joy in the heavenlies. तो अब गिडियन सेवकाई का एक हिस्सा बनिए, और आपके द्वारा एक भी आत्मा प्रभु के पास आता है तो बहुत ही खुशी का समय है। So meet us, take more information from us, and please fill this form. If you don't have the money with you today, you can even scan the QR code. We have a QR code for the national account. If that is not possible, we can wait for you. Maybe this weekend, by this weekend, you can contact us and pay the amount. और अगर आज आप प्रभु के सेवकाई में अपना नाम देना चाहते हैं, सेवकाई में जाना चाहते हैं, तो आप इनसे मिलिए। और अगर आज के दिन आपके पास कोई पैसा नहीं रहेगा तो वो रुक सकते हैं, वो बाद में भी आप उनसे बात करके देख ले कि वो दे दें। And the very last request is that
Last year, after COVID also, we could distribute, by God's grace, we distributed 1 crore 5 lakh New Testament copies in our own nation of India in 25 different languages. We give it free of cost, but the printers, we have to pay them. And one printing cost of one New Testament is 50 rupees. And you can imagine when we are distributing 1 crore plus Bibles, how much amount is needed there. The financial need is also there. So this church has always been very generous to the Gideons. You also have an opportunity after the church, if you want to invest and sow into this ministry, you can meet us. You'll get the receipt for us. We'll receipt for you. 100 Bibles, 5,000 rupees a box. Maybe 50 Bibles, 2,500, or whatever number God leads you, as God leads you and as permission with pastor and the church. हालेलुया हालेलुया। Yes. और जैसे भाई ने बताया कि ये साल उन्होंने 1 करोड़ 5 लाख बाइबल मुफ्त में 25 ऐसे भाषाओं में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। और हमने गिडियन सेवकाई कभी भी बाइबल को बेचती नहीं है, तो मुफ्त में वो सबको देती है। स्कूल्स रहने दो, होटल्स रहने दो, सेवकाई कौन से भी, लेकिन उसको बनाने के लिए, प्रिंट करने के लिए तो पैसा लगता है। तो वो पैसा अगर हम कुछ हाथ बाहर लगा सकते हैं, कभी कभी हम इतने और साल में होटल जाते तो हम नहीं जाके अगर प्रभु के सेवकाई में अगर